جھنگ ضلع کی ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں سی ٹی اسکین نہ ہونے سے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ۔ مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے سی ٹی اسکین کرانے پر مجبور۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جھنگ ضلع کی واحد سی ٹی اسکین مشین ایک بار پھر سے خراب ہو گئی۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں سی ٹی اسکین نہ ہونے سے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ۔ مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے سی ٹی اسکین کرانے پر مجبور ہو گئے۔ جھنگ ضلع کی واحد سی ٹی اسکین مشین ایک بار پھر سے خراب۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں سی ٹی اسکین نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات۔ مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے سی ٹی اسکین کرانے پر مجبور۔ اسپتال انتظامیہ جلد سی ٹی اسکین مشین ٹھیک کرائے، مریضوں کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں ناک، کان اور گلے کے مریض در بدر۔ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ای این ٹی ڈاکٹر سرے سے موجود ہی نہیں۔ اگر آپ ناک، کان اور گلے کے مرض میں مبتلا ہیں تو ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ کا رخ نہ کریں، کیونکہ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ای این ٹی ڈاکٹر سرے سے ہی موجود نہیں۔ ناک، کان اور گلے کی مرض میں مبتلا مریض علاج معالجے کے لیے شدید پریشان دکھائی دینے لگے۔ مریض ڈی ایچ کیو اسپتال کی بجائے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ جی ای این ٹی ڈاکٹر تو یہاں تقریباً یہ ضلع بننے کو 13.5 سال ہو گئے ہیں، اور 12 سال تک یہاں کوئی ای این ٹی ڈاکٹر اویل ہے ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی پیشنٹ یہاں تکلیف میں آتا ہے تو جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ڈی ایچ کیو میں ای این ٹی ڈاکٹر جو وہ تعینات ہی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے اور سیکٹری ہیلتھ سے ای این ٹی ڈاکٹر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں تعینات کریں تاکہ مریضوں کو سہولت ہو اور مریض اپنا علاج جاری رکھ سکیں۔ 468 ڈانگرے سے آئے ہیں، تقریباً 10 کلومیٹر سفر تھا۔ ای این ٹی کے ڈاکٹر نہیں ہے، جو اس باری کا مسئلہ بنتا ہے۔ مہربانی کیجیے وزیر بجا سے کوئی ڈاکٹر کا بندوبست کیا جائے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ ای این ٹی ڈاکٹر نہ ہونے سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے مطالبہ کیا کہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں ای این ٹی ڈاکٹرز کی تعیناتی کی جائے۔ محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پر بین ہونے کی وجہ سے ای این ٹی ڈاکٹر کی خالی اسامیوں پر تعیناتی نہیں ہو سکی۔ آئندہ میٹنگ میں محکمہ صحت حکام سے گزارش کر کے تعیناتی کرائی جائے گی۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اسموگ میں سافٹ لاک ڈاؤن۔ فیصل آباد میں پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ضلع انتظامیہ مارکیٹیں 3 بجے تک بند کرانے میں ناکام رہی۔ شہریوں کو اسموگ سے بچانے کے لیے فیصل آباد سمیت 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جس میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز اور کالجز آج بھی بند رہے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفیسز اور ریونیو دفاتر بھی 3 بجے کھلے۔ واسا، پی ایچ اے، ایف ڈی اے، اسسٹنٹ کمشنر دفاتر بھی 3 بجے تک بند رہے۔ لیبر آفس، تحصیل، میونسپل کمیٹیاں، ضلع کونسل آفس بھی 3 بجے تک بند رکھے گئے۔ سوشل ویلفیئر، ایکسائز آفس، سول ڈیفنس آفس بھی 3 بجے کھولے گئے۔ تمام صوبائی سرکاری دفاتر کے عملہ کو 3 بجے سے 10 بجے تک ڈیوٹی سر انجام دینے کا حکم ہے۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی 3 بجے کھلے۔ محکمہ ماحولیات کے افسران کو فیلڈ میں سموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فیصل آباد شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں صبح کی بجائے دوپہر 3 بجے کھولنے کا حکم دیا گیا، مگر دکانداروں نے معمول کے مطابق مارکیٹیں اور دکانیں کھول لیں اور سماگ لاک ڈاؤن کا حکم رد کر دیا۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ بھی پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دی۔ سٹی 41 کی نشاندہی کے بعد تاجر رہنماؤں نے اپنی مدد آپ کے تحت دکانیں بند کرا دیں اور تمام دکانداروں کو 3 بجے سے پہلے کسی صورت دکانیں نہ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے دھان کی باقیات اور دیگر فصلوں کی باقیات جلانے اور کھلے مقامات پر آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر وکاس بیگ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسموگ نے پابندیوں میں جکڑ کر رکھ دیا۔ فضائی آلودگی سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے روز بھی پنجاب کے 10 اضلاع میں سافٹ لاک ڈاؤن رہا۔ پان کی باقیات جلانے، بھٹوں اور ٹرانسپورٹ سے فضائی آلودگی کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ روز بھی فضا میں آلودگی کی شرح معمول سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے سبب ڈپٹی کمشنر آفس، ضلع کونسل، میونسپل کمیٹی، تحصیل آفیسر، لیبر آفیسر، ایکسائز، سوشل ویلفیئر سمیت صوبائی محکمے 3 بجے تک بند رہے۔ جزوی طور پر مارکیٹس اور کاروبار مراکز بند رہے اور 3 بجے کے بعد کھل گئے۔ سرکاری نجی تعلیمی ادارے آج بھی مکمل طور پر بند رہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی اسموگ پر قابو پانے کے لیے محدود وقت کے لیے لاک ڈاؤن رہا۔ سرکاری دفاتر، نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز 3 بجے تک بند رہے۔ سرکاری دفاتر 3 بجے کے بعد کھولے گئے۔ ضلع انتظامیہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل کرانے کے لیے متحرک رہی، جبکہ خلاف ورزی کرنے پر متعدد دکانداروں کو حراست میں لیا گیا اور وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسموگ کا روگ، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز دھواں چھوڑتی گاڑیاں، موٹر سائیکل، بھٹے فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب۔
मौसम सर्द होते ही स्मोक जिंदगी का रोगा बनकर धमकती है, जिसके सबब इसकी फिजा में जहरीले धुएं की आमेजिश बढ़ती जा रही है। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज है। धान की बाकियात जलाने, भट्टों और ट्रांसपोर्ट से फिजाई आलूदगी की मिसाल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात ने आइंदा दिनों में फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। आजकल जैसे कि आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव इशू है माहौल, और बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है हर तरफ, और है भी जैसे जिस शहर से मैं उठ के आई हूँ वहाँ पे हवा की आलूदगी का सबको पता है कि कितनी वो टॉप पे पहुँची हुई है। और फैसलाबाद इवन कल मैं फैसलाबाद का AQI इंडेक्स देख रही थी, वो 245 AQI इंडेक्स है, विच इज़ जो कि इसको अनहेल्दी, फैसलाबाद की हवा को इस वक्त अनहेल्दी बना रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे रोज स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए, जबकि बाजार और मार्केटें दोपहर 3 बजे खुले रहेंगे। माहिर वेस्ट मैनेजमेंट मिंजा का कहना था कि फैसलाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है। शहरियों को खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जो हम लोग अपने घरों से ज़्यादातर जो हमारे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें आप समझ लो कि किचन का वेस्ट है, जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, वो वेस्ट जो है जब हम लैंडफिल के ऊपर या कहीं पे भी किसी भी कूड़े के ढेर पे वैसे ही फेंक देते हैं तो जमा होता रहता है, तो उसमें से एक बहुत ही ख़तरनाक गैस निकलती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन। और इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। अगर आलूदगी से अटे माहौल की तरफ ध्यान न दिया गया तो ये कुर्रा अर्ज आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बनकर रह जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। झोंग में शुगर मिल्स मालिकान ने काश्तकारों के करोड़ों रुपए दुबा लिए। अदम अदायगी के सबब मिल्स इंतजामिया की जानिब से गन्ने की खरीदारी का अमल भी ताहाल शुरू न हो सका। गन्ने की क्रशिंग शुरू न होने से काश्तकार परेशान। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। रोड पर वाकई शुगर मिल्स की जानिब से मेहनत कश किसानों को करोड़ों रुपए की अदायगियां नहीं हो सकी, जिसके सबब शुगर मिल में इस साल गन्ने की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी और न ही गन्ने की क्रशिंग का अमल शुरू हो सका, जिस पर काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। जिला इंतजामिया ने ना दहिंदा शुगर मिलों के बारे केन कमिश्नर से राब्ता कर रखा है। केन कमिश्नर की जानिब से मौसूल होने वाली हिदायत के बाद ही शकरगंज में गन्ने की खरीदारी और क्रशिंग शुरू हो जाएगी। ताहम क्रशिंग शुरू न हुई तो गन्ने की कटाई वक्त पर नहीं हो सकेगी, जिससे गन्ने की बवाई में भी ताखीर होगी। जी हम बहुत परेशान हैं कि दूसरी मिलें चल गई हैं, तो अगर हम उधर गन्ना लेके जाएं तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस मिल को जल्दी चलवाना चाहिए, क्योंकि अगर गन्ना नहीं निकलेगा तो हम ये गंदम कैसे काश्त करेंगे। गंदम की पशेती काश्त से गंदम की पैदावार में वाज़े कमी का भी अंदेशा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। उधर किसान कीमतों में बेतरबे इजाफा से परेशान। गंदम की काश्त करना मुश्किल होने लगा। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। गंदम की काश्त का सीजन शुरू होते ही नाजायज मुनाफाखोर माफिया ने खाद महंगी करना शुरू कर दी, जिससे किसानों के मसाइल और बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है तो दूसरी तरफ इसकी कीमतों में आज खुद इजाफा भी किया जा रहा है। महंगी हो रही है जी, DAP भी महंगी है तो यूरिया ही महंगी हो गई है। गरीब बंदे की कर से, ना आटा लभदा खावाण नू, ना सब्जी लभदी है खावाण नू, जेबे पैसा कोई नहीं तो खादा किथों लाके पाइए। खाद कंपनियों ने भी कीमत में इजाफा कर दिया है। इस सूरत हाल में किसान रहनुमाओं का मौकफ है कि बहुत से किसान बगैर खाद के ही गंदम काश्त करने पर मजबूर हैं, जिससे पैदावार में कमी का अंदेशा है। किसान कहते हैं कि इन हालात में काश्तकारी करना एक मुश्किल पेशा बनकर रह गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। 2 रोज़ा फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल मुकम्मल अदबी रंग बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर। मुल्क के नामवर अदीब, अदाकार, लिखारी, मुहक्किकीन, मौरखीन और सहाफ़ियों ने शिरकत की। टिकटॉक के साथ फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हमें लगता है ओहो इखलाकियात का जनाजा निकल रहा है, टिकटॉक पे ये हो रहा है वो हो रहा है। आई डोंट बिलीव दैट। आई फील इट्स एन आउटलेट। लोग कर रहे हैं, अब मासूमियत से कुछ बना रहे हैं, कुछ शातिरपने से बना रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ बेहुदा बना रहे हैं। पूरी दुनिया में टिकटॉक को तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो जस्ट दैट लैक ऑफ वैरायटी आई फील
दो रोजा फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के पहले रोज 3 सेशंस मुनक्किद किए गए, जबकि दूसरे रोज के सेशंस में बयादे शौकत सदीकी, पंजाब दे दो महाराजे, किताबों की रूनमाई, सूदो ज़िया के दरीचों से हवा भी सांस लेती है। द स्माइल स्नैचर सारिस क्रेन अपने ख्वाबों में से उड़कर जा चुके हैं। पंजाबी लिखता दे जो के रूप, उम्मीद की किरण या लम्हा फिक्रिया, सोशल मीडिया सहाफत का नेमुल बदल, टीवी ड्रामा और नए इम्कानात शामिल थे। दूसरे रोज के 10वें और 11वें सेशन ने खूब माहौल गरमाया। सोशल मीडिया और ड्रामा के हवाले से पैनलिस्ट ने बेहतरीन गुफ्तगू करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। 10वें सेशन के पैनलिस्ट में डॉक्टर रसूल बख्श रईस, अरीबा शाहिद, वजाहत मसूद और खलीक हारिस शामिल थे। जो अर्बनाइजेशन है उससे किस किस्म की जिंदगी पैदा हुई है, वो एक मटीरियल कंडीशंस तब्दील हुई तो उससे मुआशरत तब्दील हुई। अगर आप ये समझते हैं कि चूंकि आप फैसलाबाद में बैठे हैं या लाहौर या मुल्तान में बैठे हुए हैं और अगर आप सनती और अर्बनाइज मुआशरा पैदा करते हैं तो वो वैसे असरात पैदा नहीं होंगे, ये आपकी गलतफहमी। As far as tampering and things of the sort go, in the past what would happen is अगर किसी के पास खबर होती थी, they would reach out to a journalist और उनको बताते थे ये मेरे पास ये खबर है, आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। अब वो बंदा खुद ही सोर्स बन गया है। मैं फख्र से कहा करता था कि एमए उर्दू एवरेज जो है पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा उर्दू लिटरेचर इसने पढ़ रखा है। उसने अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ा हुआ है, इंतजार हुसैन साहब को पढ़ा हुआ है, लेकिन अब वो सारा वक्त हंसता रहता है। दूसरे रोज का 11वां और आखिरी सेशन टीवी ड्रामा और नए इम्कानात से मंसूब था, जिसके पैनलिस्ट में बहरोज सब्जवारी, सरमद खुसट, बी गुल, शीबा आलम, असगर नदीम सैयद, ड्रामा काबली पुलाव के राइटर जफर मिराज शामिल थे। पैनलिस्ट ने ड्रामा और दौरे हाजिर में पेश मुश्किलात पर बेहतरीन तबसरा किया। सच बोलना है ये एक जुमला है, उस सच के पीछे कितने रिवायात हैं, कहाँ तक जाना है। पर्दा एक हुक्म है, लेकिन मेरे यहाँ मसला ये कि मेरे यहाँ तो दीवारें भी नहीं हैं, तो मैं किस चीज़ का पर्दा करूँ। ड्रामे के अहकामात नए क्या होंगे कि आपको दिखाया क्या जाए। ये चॉइस लेने की ताकत कुछ लोगों के पास रहती है हमेशा कि आपको ये दिखाया जाए जो कि शायद आप न देखना चाहते हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर काबली पुलाव इतना हिट है और मिलियंस ऑफ लोग उसको देखते हैं तो वो यही देखना चाहते हैं। फूड चेन होती है, मुझे लगता है वो इकोसिस्टम का एक बुनियादी एक क्लासिफिकेशन है। और आप चाहे फिल्म की बात करें, चाहे हम पीटीवी के ज़माने से उसको शुरू करें, उसमें कहीं ना कहीं पावर फिगर्स, अथॉरिटी कंट्रोल करने वाले, सपोर्ट करने वाले, उसको पनपने में, उसकी निगहदाश्त में एक एक्टिव रोल अदा करने वाले, वो सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। ये कहानी बिल्कुल बदल गई है। अब समझ में नहीं आता कि कॉमेडी कौन सी चाहिए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस का कसूर नहीं है इसमें, हमारा कसूर है। देखिए, हम जो देंगे पब्लिक वो ले लेगी, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट टेलीविजन के अलावा कौन सा एंटरटेनमेंट है हमारे मुल्क में। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2 रोज जारी रहा, जिसमें उदबा, शोरा, मुसन्निफीन, अदाकार, सहाफ़ी, मौरखीन, मुहक्किक, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट समेत सिविल सोसाइटी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान, अब्दुर्रहमान, शाहजेब अली, मोहम्मद जुबैर, अशफाक बुखारी, साथी रिपोर्टर्स खिलजा लियाकत और मरियम रजा के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले अफराद की आजकल शामत आई हुई है। 18 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान 4000 चालान किए जा चुके हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 200 मुकदमात और 11 गाड़ियां बंद कराई गई हैं। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद 24 घंटे कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हशाम भट्ट का कहना था, वालिदैन 18 साल से कबल बच्चों को ड्राइविंग हरगिज न करने दें। कम उम्र बच्चे पर मुकदमा दर्ज होने से मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। उसमें तकरीबन हमने 201 से ज़ायद FIRs का अंदराज किया ऐसे तमाम कम उम्र ड्राइवर्स और ऐसे अफराद के खिलाफ जो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे थे, और उसमें हमने 4000 से ज़ायद गाड़ियों के चलान किए हैं, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वगैरह। इसके अलावा दीगर कार्रवाइयों में जो है हमने 1000 से ज़ायद, तकरीबन 1100 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो बंद की हैं। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के सेंटर्स से 24 घंटे लाइसेंस बनवाया जा सकता है। कैमरामैन जुनेद अहमद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। थानों को स्पेशल थानों में तब्दील करने के वादा हुआ हवा बुर्द। तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल की रिपोर्ट में।
थानों को स्पेशल थानों में तब्दील करने के दावे हवा बुर्द हो गए। फैसलाबाद का थाना मंसूराबाद खस्ता हाली का बदतरीन नमूना बन गया। थाना मंसूराबाद के तफ्तीशी अफसरान दुकानें किराए पर लेकर सरकारी अमूर सरंजाम देने पर मजबूर हो गए। किराया की प्राइवेट बिल्डिंग में वाक़ थाना मंसूराबाद में तफ्तीशी अफसरान के लिए कमरे ही मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसरान ने थाना के करीब दुकानें किराया पर हासिल कर ली। तफ्तीशी अफसरान दुकानों का किराया भी अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसरान के किराया जेब से अदा करने की वजह से करप्शन में भी इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में कहीं जराइम की वारदातें कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां तो कहीं बोगस मुकदमात की भी बाज़गश्त। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। ज्यादती के बोगस मुकदमा दर्ज कराने की बाज़गश्त सुनाई थी। रवा साल 283 ज्यादती के मुकदमात में से 54 झूठे साबित होने पर खारिज कर दिए गए। फैसलाबाद में ज्यादती के 62 मुकदमात ताहाल ज़ेर तफ्तीश है। 26 के नामुकम्मल और 121 मुकदमात के मुकम्मल चालान अदालतों में जमा करा दिए गए। अदालतों में 40% ज्यादती मुकदमात के मुद्दियान ने बयान देकर सुलह कर ली। 7 मुकदमात में मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार पाए। उधर FIA कंपोजिट सर्कल ने घोना जिला फैसलाबाद में कार्रवाई करते हुए स्मगलशुदा तेल के गोदाम पर छापा मारकर 22 लाख से जायद मालियत का 10,000 लीटर तेल बरामद कर लिया। मुल्जिम मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार करके गोदाम को सील कर दिया गया। मुल्जिम मोहम्मद आसिफ तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस पाया गया। जबकि टोबा टेक सिंह में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वसीम ओल्ड डिकेट गैंग के 5 मुल्जिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से एक ट्रैक्टर, 7 लाख रुपए नकदी, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में वसीम, जुल्फिकार उर्फ घोगी, यूसुफ, बिलाल, मोहम्मद ज़िशान शामिल हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातें करने का इंकशाफ किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल ने जड़ावाला में लगाई खुली कचहरी। सालीन ने अपनी मुश्किलात बयान की। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल ने जड़ावाला में खुली कचहरी लगाई, जिसमें SP जड़ावाला आबिद जफर, DSP और SHOs भी मौजूद थे। SP जड़ावाला दफ्तर में होने वाली खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद शरीक हुई। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल ने साइलिन के मसाइल सुने और कुछ मौके पर ही हल किए। मोहम्मद अजमल का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम को दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। खुली कचहरियां तमाम टाउन्स में लगाई जाएंगी। अवाम दफ्तर में आकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। SSP मोहम्मद अजमल ने खुली कचहरी का सिलसिला जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर में खवातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम करने और खवातीन को मुस्तहकिम बनाने के लिए कोशा। मजीद जानेंगे मरीम रजा की रिपोर्ट में। खवातीन माशरे का अहम हिस्सा हैं और पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से ज्यादा हैं, लेकिन खवातीन पर आए रोज कई तशद्दुद के केसेस सामने आते हैं। आज पूरी दुनिया में खवातीन पर तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सोशल वेलफेयर बेसिकली खवातीन के जो खिलाफ तशद्दुद 3 फोरम पे काम करता है। एक तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक अथॉरिटी, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो वो वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक्ट 2016 के तहत इस्टेब्लिश हुई और वो पूरे पंजाब में इस वक्त काम कर रही है। तो कहीं से भी उसका एक टोल फ्री नंबर है, तो 1743, और उस पर आप कॉल करते हो तो वो कहीं से भी किसी भी खातून के खिलाफ किसी किस्म के तशद्दुद है, चाहे वो माली है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सेक्सुअल है, तो वो रिपोर्ट कर सकती है, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सोशल वेलफेयर में खवातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम करने और खवातीन को मुस्तहकम करने के लिए कोशा है। इस मौका पर सोशल वेलफेयर के डिविजनल डायरेक्टर मुजम्मिल यार कहते हैं, खवातीन हमारे माशरे का अहम हिस्सा है। खवातीन को मुस्तहकम, मजबूत और बाहुनर बनाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। तशद्दुद को कम करने के लिए दूसरा जो फैक्टर है वो विमेन एम्पावरमेंट है। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको हम डिसीजन मेकिंग में और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। तो वहाँ पे भी सोशल वेलफेयर का अपना इदारा सनज़ार मौजूद है। तो जहाँ हम तशद्दुद के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी रोकथाम के लिए हम जो है वो सोशल वेलफेयर अपने मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ काम कर रहा है। दारुल अमान एस्टैब्लिश है, सनज़ार काम कर रहा है। खवातीन जिंदगी के हर रूप में अपना किरदार अदा कर रही हैं और हमें माशरे में खवातीन पर होने वाले तशद्दुद और नाइंसाफी पर रोकथाम करने के इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन टीम के हमरा मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आम इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त अवेज़ा होगी और शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इंतखाबी फहरिस्तों को फ्रीज कर दिया गया। शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू, तबादलों पर पाबंदी आयद हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फेस्को के मुरम्मती काम शहरियों के लिए वबाल जान। झंग में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। दुरानिया 6 घंटों से भी तजावुज़ कर किया। कारोबारी और घरेलू सार्फिन परेशान हो गए। झंग में फेस्को की जानिब से मुरम्मती कामों के नाम पर घंटों की लोड शेडिंग की जाने लगी। रेल बाजार, धिजी रोड और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। सार्फिन फेस्को हुकाम पर बरहम बोले। बिजली की बंदिश के बायस कारोबार ठप हो गया है। अमूल खारादारी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
चौधरी काशिफ नवाज रंधावा को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा को उनके तंजीमी और जमाती सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा की तरफ से मुख्तलिफ कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा ताकि जमात की सियासी और अफरादी सरगर्मियों को मौसर अंदाज से चलाया जा सके। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा के बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तकर्री का बाकायदा तौर पर मरकजी अमीर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। उम्मीदवार बराए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट और उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी कादर बख्श शाहिल की टोबा डिस्ट्रिक्ट बार आवाज इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से टी पार्टी का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार बराए सदर असद मंजूर का कहना था कि मुंतखब होने के बाद वकला के वेलफेयर के लिए इक़दाम उठाएंगे। वकला हुकूमत का हिस्सा नहीं होते लेकिन सरकारी अमूर चलाने में इनका बहुत अमल दखल होता है। बतौर सदर मेरा मकसद कानून की बालादस्ती कायम करना है। नौजवान वकला के चैम्बर्स वकला कॉलोनी समेत तमाम मसाइल हल होंगे।